Hello students, this is chemistry class. Unit is states of matter and topic gas laws. Until now you have done two laws, Boyle's law and Charles law, and now we will do third law, that is Gay-Lussac's law, and it tells about the pressure temperature relationship. Okay, and what is this law? So it states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with temperature. Means fixed amount of gas N is fixed, number of moles fixed है, and at constant volume then volume भी fixed है, तो V and N remains constant and pressure और temperature का relationship देता है ये law. तो मैथमेटिकली प्रेशर डायरेक्टली वेरी करता है विथ टेम्परेचर. इट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड V एन कांस्टेंट. और यू कैन ऑल्सो राइट P इज इक्वल टू K T, where K is the proportionality constant, or P by T is equal to K. Again V and N constant, means जो गैस है वो फिक्स्ड है और उस टाइम वॉल्यूम जब गैस का अगेन कांस्टेंट है, उस केस में प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है. एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में क्या होगा? एंड इनिशियल सपोज प्रेशर इज P1, इनिशियल प्रेशर इज P1 एट टेम्परेचर T1. So final pressure at temperature T2, and in that case P1 by T1 is equal to P2 by T2. Okay. So this law is graphically illustrated as when we plot a graph between pressure versus temperature at constant volume, constant molar volume, means volume constant है and for 1 mole of gas. तो उस केस में एक straight line observe होती है, like when pressure increases and in that case temperature is also increasing. pressure increase होगा तो temperature भी increase हो रहा है. ठीक है. pressure इधर आया तो temperature भी आगे increase हो गया. इट मीन्स जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन आ रही है. इट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो ये लॉ इस वजह से प्रूव हो जाता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के. ओके. Now we will do NCERT question based on this law. A chamber of constant volume is constant, contains hydrogen gas. When this chamber is immersed in a bath of melting ice, that is temperature is 0 degrees Celsius, the pressure of the gas is 1.07 into 10 to the power 2 kilopascal. What pressure will be indicated when the chamber is brought to 100 degrees Celsius? Means when T1 temperature is 0 degrees Celsius, और आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. then we will add 273, means T1 is 273 Kelvin, and in that case P1 is 1.07 into 10 raised to power 2 किलोपास्कल यूनिट है प्रेशर की. ठीक है. एंड इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, इंक्रीज होता है बाय 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मीन्स 373 केल्विन. देन इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रेशर? P2 क्या होगा? सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट,
वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन देना है, मीन्स अकॉर्डिंग टू गैलो-शार्क्स लॉ P1 by T1 is equal to P2 by T2, and you will have to find out P2, means P2 is equal to P1 into T2 by T1. And what is P1? P1 is 1.07 into 10 to the power 2, T2 is 373 and T1 is 273. Now you will have to calculate. So when we will calculate, then pressure comes as 1.462 into 10 to the power 2 kilopascal. Means जब टेम्परेचर 273 केल्विन था, देन उस केस में P1 या प्रेशर इज दिस, एंड जब टेम्परेचर रेज कर दिया देन ऑब्वियसली प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. सो दिस इज द आंसर. ओके. So next law is Avogadro's law, and प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे इसमें, और जो रिलेशनशिप होगा वो होगा बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड अमाउंट. कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के हैं एंड वॉल्यूम कितना है, वो रिलेशन देता है एवोगाड्रोज लॉ. ठीक है. सो इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, देन उस केस में इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन्स इक्वल वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल रहेंगे व्हेन टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. एंड मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, मीन्स P and T remains constant. Or you can also write V is equal to K into N. K is the proportionality constant and N is the number of moles of the substance or gas. तो N हो गया number of moles of substance. वन मोर थिंग, एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट Na, it is 6.022 into 10 raised to power 23. This is Avogadro constant, means for 1 mole of gas number of molecules are these. These number of molecules, it is for 1 mole of gas. 1 mole of gas. 1 मोल गैस के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बराबर होंगे. ठीक है. वन मोर थिंग, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? 1 मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम, एंड दिस इज molar volume. So molar volume, it is the volume of 1 mole of gas at standard conditions of temperature and pressure. तो standard conditions क्या हैं? 0 degree Celsius is the temperature, or you can also write 273.15 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure. तो these are the standard conditions. एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज फिक्स्ड, एंड इट इज 22.4 लीटर. 22.4 लीटर. तो दिस इज द वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम. और किसके लिए है? 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है. अगर इन केस जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह 1 atm की जगह अगर हम 1 बार प्रेशर लेते हैं, ठीक है, 1 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर इज अगेन 0 डिग्री सेल्सियस, देन वॉल्यूम लिटिल बिट चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी 22.7
7 liter per mole. Okay. Now by using this formula, एवोगैड्रोस लॉ, हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और मोलर मास का रिलेशन भी बता सकते हैं विद डेंसिटी. तो V इज इक्वल टू K इंटू एन. V इज इक्वल टू K इंटू एन. एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. एंड आपने ये भी पढ़ा है कि N इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M. This is given mass, small m is given mass and m is capital M is molar mass. इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. V is equal to K into N की जगह हम लिखेंगे small m by capital M. V इधर आ जाएगा, M इधर आ जाएगा, means you can also write M is equal to K into M by V. And M by V is density. D is equal to M by V. और कैपिटल M is equal to K into D, means molar mass is directly proportional to density of the gas. means जितना ज्यादा मोलर मास उस गैस का होगा उतनी ही ज्यादा उस गैस की डेंसिटी होगी या वो उतना ही ज्यादा डेंस होगी. So this is the relation of density and molar mass of the gas. So next is combined gas law और ideal gas equation. तो जो गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ. उनको कंबाइन करके जो फॉर्मूला आएगा दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन. सो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फर्स्ट लॉ जो था वो हमारा बॉयल्स लॉ था. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या रिलेशन था? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के. एंड उस केस में कांस्टेंट क्या था? N एंड T कांस्टेंट. दो डेरिवेटिव का रिलेशन था और दो कांस्टेंट हैं. देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या रिलेशन था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के. और जब देन कौन से दो ये वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे? P एंड N, ये कांस्टेंट रहेंगे. देन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ क्या रिलेशन था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के. एंड उस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है. एंड बाय कंबाइनिंग दिस इक्वेशन, बाय कंबाइनिंग these equations, V सभी में कॉमन है, मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट एस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N T के. N T डायरेक्टली है एंड P इनवर्स हो गया. ठीक है. तो ये हमारा आ गया. एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PV प्रोपोर्शनल N T and PV is equal to R N T, where R is the proportionality constant or it is the gas constant. R is gas constant, universal है. This is universal gas constant या इसको molar gas constant भी कहते हैं. And ideal gas equation is PV is equal to nRT. nRT means n mole of gas. Ideal gas equation is this, PV is equal to nRT. And for 1 mole of gas means अगर n की value is 1, and in that case PV is equal to RT is the ideal gas equation. And जो R है that is universal gas constant, इसकी जो numerical value है वो वेरी करती है, चेंज होती है विद द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. मीन्स अगर प्रेशर बार में है देन एंड वॉल्यूम लीटर में है, देन क्या होगी आर की वैल्यू?
अगर प्रेशर को एटीएम में रखा है तब क्या होगी, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट्स में आर की वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होगी। लाइक 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये तो वैल्यू हो जाएगी आर की जब वॉल्यूम को लीटर में लिया है और प्रेशर को एटीएम में लिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड अगर हमने प्रेशर को बार में लिया है तो लिटिल बिट चेंज है, 0.0831 वॉल्यूम अगेन इन लीटर एंड प्रेशर इज इन बार। एंड वॉल्यूम इज अगर डीएम क्यूबिक डेसीमीटर में अगर वॉल्यूम लिया है हमने तो भी आर की वैल्यू वही रहेगी। एंड 8.314 होगी आर की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आर की वैल्यूज हैं, बट अगर यूनिट्स में लिटिल बिट चेंज है तो थोड़ा सा डिफरेंस वैल्यू में आ जाएगा। फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज पीवी इज इक्वल टू आर टी, और यू कैन राइट पीवी बाई टी इज इक्वल टू आर। एंड फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट फॉर्मूला विल बी P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। एंड बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, मर्करी प्रेशर, a gas occupies 600 ml volume, then what will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of the gas is 640 ml। Means P1 given है, V1 given है, T1 given है, 273 ऐड करना पड़ेगा just to convert in Kelvin, ठीक है। एंड P2 you will have to find out, V2 again given है, T2 भी given है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पता है आपको फॉर्मूला क्या है, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। P2 फाइंड आउट करना है, मीन्स P2 is equal to P1 V1 T2 अपॉन V2 एंड T1। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे एंड आंसर इज, वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया 676.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज द P2 एंड यही है आंसर।